سننے والے ہیں اس مضمون کا نام ہے چھوڑو گے تو پاؤ گے۔ کیا ہے؟ چھوڑو گے تو پاؤ گے، لیکن چھوڑنا کیا ہے اور پانا کیا ہے، اس بات کو سیکھنا ہے، تاکہ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں سالوں سال سے چرچ آتے ہیں، سالوں سال سے چرچ آتے ہیں اور ہر روز اور ہر سنڈے خدا کا کلام سنتے سیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں، زندگی کے اندر بیداری نہیں، زندگی کے اندر حلیمی نہیں، زندگی کے اندر حماقت، غرور، گھمنڈ بھرا ہوا ہے، تو پھر چرچ آنے کا فائدہ نہیں، پھر چرچ آنے کا فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام حلیمی، فروتنی آج بھی سکھاتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا خدا جو ہے وہ محبت کا خدا ہے، اور جب ہماری زندگیوں کے اندر محبت رہی تو ہم ٹھنڈ ناتے پیتل یا جھنجھناتی چھانچ ہیں۔ اور خدا کے کلام کو ایک آیت کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، سننے سے میرے ساتھ کہیں، سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ایمان کی باری آتی ہے تو اندر سے خالی ملیں گے، تو کیا ہم نے خدا کا کلام سنا ہوگا؟ اگر ایک بات کہی جائے، یہ ایسے سچ ہیں، کیونکہ نرم غذا تو ہم روز کھاتے ہیں، پنجابی چ کہندے نے ڈبل روٹی تے کھاندے رہنے تے کدی کدی پھر ہڈیاں بھی چتھریاں پیندیاں۔ جب ہم نرم غذا تو کھاتے ہیں، لیکن جب ہارڈ جو خوراک ہے اسے ہضم نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے ہم چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ کوئی بھی ہمیں انگلی سے پکڑ کر ورگلا کے لے کے جا سکتا ہے، اور لے کے کون جاتا ہے؟ وہ اس کا نام ابلیس ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا یہ سنے اور ایمان لائیں اور زندگی کے وارث بن جائیں۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے بھیجا تاکہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ اور آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ کیا ہے؟ چھوڑو گے تو پاؤ گے، چھوڑو گے تو پاؤ گے۔ آئے ہم خدا کے خادم کے ساتھ مل کر اس حوالے کو سنیں۔ مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 20 آیت سے 22ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اس پر پیار آیا، اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ برکت ہو پاک کلام کے تلاوت کیے جائیں۔ آمین۔ خدا کے زندگی بخش کلام پڑھے، سنیں اور سمجھے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ تو یہ ایک شخص ہے، اس کی کہانی ہم خدا کے کلام میں سے آج سیکھیں گے کہ یہ شخص یسوع مسیح کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اے ربی، اے استاد، اے خداوند، میں کیا کروں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ تو خداوند نے اسے کہا، ماں باپ کی عزت کر، چوری نہ کر، زنا نہ کر، اور ان سب حکموں کا اس نے جب اسے حکم دیا تو اس نے جواب دیا، ان سب باتوں پر تو میں لڑکپن سے پہلے ہی عمل کرتا ہوں۔ تو پھر خداوند یسوع نے اس پر نظر کی اور خداوند یسوع کو اس پر پیار آیا، اور جیسے پیار آیا
تو خدا نے اسے کہا تجھ میں ایک بات کی ابھی کمی ہے، جا جو کچھ تیرے پاس ہے نا وہ سب کچھ بیچ اور غریبوں کو دے دے۔ لیکن اس سے اس کا چہرہ بگڑا اور مجوس ہوا، پریشان ہوا اور پریشانی کی حالت میں وہ چلا گیا۔ لیکن یسوع مسیح نے اس سے کہا تھا اگر یہ تو سب کچھ کرے گا تو تجھے آسمان پر ایک خزانہ ملے گا۔ لیکن وہ آسمان کے خزانے کو چھوڑ کر مجوس ہو کے پریشان ہو کے وہ چلا گیا۔ لیکن ہم سب جو بیٹھے ہیں آج اس بات کو سیکھنے والے ہیں، چھوڑو گے تو پاؤ گے۔ خداوند یسوع مسیح نے صرف اس شخص سے یہ بات نہیں کہی، لیکن یسوع مسیح نے ہر ایک اس شخص سے یہی بات کہی جسے اس نے بلایا۔ اور آج خداوند یسوع مسیح جس نے میرا اور آپ کا فدیہ دیا ہے وہ آج تم سب کو بھی یہی بات کہتا ہے، چھوڑو گے تو پاؤ گے۔ ہم آج کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو خدا کے کلام سے باہر ہو، بلکہ ہم خدا کے کلام کے آئین اور قانون سیکھیں گے، خدا کے کلام کے بیچ میں رہیں گے۔ جب ابراہیم کو خدا نے بلایا تو ابراہیم سے خدا نے کیا کہا؟ اپنے ماں باپ کو چھوڑ، اپنے باپ کو چھوڑ، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور سب کچھ چھوڑ اور میرے پیچھے آ گئے۔ تو ابراہیم کیا تھا؟ ابراہیم بھی انسان تھا، ہماری طرح وہ بھی انسان تھا۔ وہ بہت ایماندار تھا، بے شک وہ ایماندار تھا، لیکن اس کا باپ تھا، اس کا خاندان تھا، اس کے رشتے دار تھے، اس کے تعلق تھا، اس کے جو تعلق والے جاننے والے تھے یا دوست تھے، اس علاقہ کے اندر اس کی پہچان تھی، اس علاقہ کے اندر وہ پیدا ہوا، بڑا ہوا اور وہاں اس نے تربیت و نصیحت پائی۔ ان کے ساتھ بھی لوگوں کی رفاقت تھی، پیار تھا۔ لیکن جب خدا نے اسے بلایا تو کوئی سن رہا تھا؟ کوئی نہیں سن رہا تھا، کیونکہ خدا نے اسے پکارا، ابراہیم کو پکارا، اور ابراہیم کو خدا نے کہا چھوڑ دے سب کچھ چھوڑ۔ تو اس نے قبول کیا۔ میرے عزیزو، چھوڑو گے تو پاؤ گے۔ آج کا مضمون ہے چھوڑو گے تو پاؤ گے۔ لیکن خدا نے اسے کیا کہا؟ چھوڑ دے، باپ کو چھوڑ دے، ناطے داروں کو چھوڑ دے، اور میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے چاند ستاروں کی طرح اولاد دوں گا۔ یہ خدا کی بلیسنگ تھی، یہ خدا کی برکت تھی۔ لیکن یہ برکت آگے کھڑی ہے، ابراہیم پیچھے کھڑا ہے۔ وہ اپنے علاقہ کے اندر، وہ اپنے ملک کے اندر کھڑا ہے، لیکن اگر وہ خدا کی بات کو نہ مانتا، اگر ناطے داروں کو نہ چھوڑتا، اگر عزیزوکاروں کو نہ چھوڑتا، اگر رشتہ داروں کو نہ چھوڑتا، تو کیا وہ اس بلیسنگ کو پا سکتا تھا؟ کبھی نہیں پا سکتا تھا۔ جب اس نے خدا کی بلاہٹ کو، خدا کی آواز کو اپنی زندگی کے اندر لے لیا، خدا کے حکم کو مان لیا، تو خدا کی بلیسنگ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ آج بھی خدا کہتا ہے دیکھ میری بیٹی، دیکھ میرے بیٹے، میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، لیکن تو بڑا بے درد ہے، بے رحم ہے، تو دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس کی کنڈی جو ہے وہ اندر لگی ہے۔ اگر ابلیس آواز دیتا ہے تو فوراً کھول دیتا ہے، لیکن میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرے لیے خون بہایا ہے، میں نے تیرے لیے قربانی دی ہے، میں نے تیرے لیے جان دی ہے، لیکن تو میرے دکھوں کو، میری تکلیفوں کو، میرے درد کو، میرے لہو کو تو قبول نہیں کر رہا۔ لیکن میں اس حالت کے اندر بھی تیرا منتظر ہوں، اور میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہوں، لیکن تو دروازہ کھول تو میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ لیکن ہم کنڈی نہیں کھولتے کیونکہ کہیں خدا اندر نہ آ جائے۔ تو میرے عزیزو، ہم سب جو ہیں وہ خوش قسمت ہیں، لیکن ایک مثال ہے کسی نے دی ہے، اس مثال کو میں آپ کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خوش قسمتی جو ہے
वो कभी कभी दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जो बदकिस्मती है वो रोज खटखटाती है। क्यों? क्योंकि बदकिस्मती नहीं चाहते तुम खुदा की हजूरी तक जाओ। वो उसे पता है अगर मैं हलाकत में, मैं उस अदालत के अंदर पेश हूं जो वो होने वाला हूं जहां रोना और दांतों का पीसना है, इसलिए वो चाहता है कि ये सब मेरे मिंबर बन जाए। लेकिन खुदा कहता है, खुदा के कलाम में लिखा है, वो नूर था और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया, तरीकी ने उसे कबूल ना किया। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। मेरे शिशो, नूर तरीकी में चमकता है, हमारी बदकिस्मती में वो चमकना चाहता है। वो चाहता है तुम इस हलाकत से निकल कर जिंदगी के अंदर आ जाओ, लेकिन इस जिंदगी के अंदर आने के लिए तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपनी जो बदगोई वाली जबान है वो छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें हमाकत छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें झूठ मारना छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें बुरी रफाकत छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें हर उस राह से पीछे होना पड़ेगा और खुदा की हजूरी में आके आज की हलीमी फरोतनी माननी पड़ेगी। अगर तुम मानोगे तो फिर तुम हलाक नहीं होगे, बल्कि हमेशा की जिंदगी के बारे में सोचोगे। हालेलुया। छोड़ोगे तो पाओगे। जितने नबी पैगंबर, जितने रसूल आए, उन्होंने एक बात कही, तौबा करो, तौबा करो। तौबा का मतलब क्या था? तौबा का मतलब यही था, ऐ इंसान गुनाह करना छोड़ दे, ऐ इंसान झूठ मारना छोड़ दे, ऐ इंसान ज़िना करना छोड़ दे, ऐ इंसान तू हर बुरी राह से मुड़ जा और तौबा कर, तौबा कर, क्योंकि खुदा की बुलाहट तेरी जिंदगी के लिए यही है। और यही बुलाहट जिन्होंने कबूल की है वो मुकद्दस हो गए हैं और उनका नाम किताब हयात के अंदर लिखा हुआ है आज। और वो ऐसे लोग होंगे, सिर्फ मसीही होना हमारे लिए काफी नहीं है, हमारे लिए मुकद्दस होना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, मेरे साथ रहे। मुकद्दस होना सबसे बड़ी बात है। आसमान पर वो जाएंगे जो मुकद्दस मसीही होंगे। बपतिस्मा लेने से, कलाम सुनने लेने से अगर अंदर की तब्दीली नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। अगर इस कलाम का जिंदगी के अंदर अमल नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। सालों साल खुदा के खादम चीख चीख कर आप तक खुदा की आवाज पहुंचाते हैं, आप सुनते हैं। अगर हालात नहीं बदलते, अगर अपने आप को तुम बदल नहीं सकते तो फिर सुनने का फायदा क्या है? इसका मतलब ये है, खुदा के खादम, खुदा के लोग अपना फर्ज जो है वो अब तक पूरा कर रहे हैं। खुदा जब यहाँ बोलता है खुदा का खादम, तो खुदा के रूह कुद्दस के वसीला से होकर बोलता है। जब भी दुआ की जाती है तो कहा जाता है पहले दुआ खादम के कलाम करने से पहले कि खुदावन आज तेरा खादम नहीं बल्कि तेरा पाक रूह हमसे हम कलाम। तो जब आप खुदा के पाक रूह की आवाज सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते, जब भी आपकी आजमाइश होती है, जब भी आपकी आजमाइश करने के लिए खड़ा होना पड़ता है आपको सामने, तो फिर वही पुरानी जिंदगी आपके अंदर से नजर आती है। तो इसका मतलब है आपने कुछ सुना नहीं, अगर सुना है तो उस पर अमल नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया। मैं एक मिसाल देने लगा हूं। इस घर का खादम, इस घर का जो मालिक है, जैसे भाई हारून है, इसका कमरा है, इसके कमरे के अंदर हर वो कीमती सामान पड़ा है। तो अगर वो चुरा के कोई ले जाए तो इसका मतलब है कि इसने उसके चिकित्त अपने अच्छे तरीके से देखभाल नहीं की, दरवाजे को बंद नहीं किया, लॉक नहीं किया, दरवाजे खुले हैं और चोर चुरा के ले गया। क्यों? क्योंकि आसानी से रास्ता मिल गया। यही बात हम पे डिपेंड करती है। आप खुदा का कलाम सुनते हैं लेकिन उसे अपनी जिंदगी के अंदर ज़हीरा नहीं करते। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से इब्लीस चुरा के ले जाता है। इसका मतलब हम कमजोर हैं, हम सुस्त हैं और हम उन कुंवारियों की मानद हैं, उन कुंवारियों की मानद हैं जिन्होंने परवाह नहीं की कि दूल्हा आने वाला है। और वो क्या कर रही? वो परेशान
हो गई, वक्त गुजर गया, दरवाजा बंद हो गया और जो चालाक थी, जो बेदार थी, वो उसके साथ रह गई। मेरे अज़ीज़ों, आज वक्त है, आज वक्त है, खुदा की आवाज़ है, छोड़ोगे तो पाओगे। अगर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, तो खुदा के अंदर फिर बहुत कुछ है। खुदा ने कहा सब कुछ बेच, सब कुछ बेच और बेच कर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। वहां ना चोर का खतरा है और ना डाकू चुरा के ले जा सकता है। इसलिए मेरे शिशो, आज खुदा कहता है छोड़ोगे तो पाओगे। अगर पुरानी इंसानियत हमारे अंदर है तो फिर एक दफा किसी ने मैसेज सुन रहा था, उसके अंदर किसी ने मिसाल दी कि एक बंदा था, चर्च के अंदर आके बैठा और बैठकर वो पास्टर साहब ने देखा कि भाई वो कितों आ रही है, तो उन्हें देखा कि उनकी जराबा चो आ रही। उन्हें कहा भाई पैसे लै नवियां पा के आ जा। उन्हें कहा भाई साहब ने पैसे दिते, मुहर दे। उन्हें कहा ठीक है सर। भजा गया, भज के नवी दुकान तो जराबा नवियां लितियां, वो जराबा नवियां पा लिया, पुरानी एक अदर पा ली, एक अदर पा ली। भाई साहब ने फिर वेख्या, भाई साहब ने आख्या भाई फिर वो आ रही। उन्हें कहा नवियां पाइया ही? उन्हें कहा हाँ जी पैर धो के पाइया ने, देख लो। तो उन्हें कहा पुरानियां कितने? उन्हें कहा क्या ही लिखा है। उन्हें कहा भाई सट दे, सटेगा तो वो जाएगी। मेरे शिशो, अगर पुरानी जिंदगी आपने तोबा करके अपनी पॉकेट में एक इधर छुपा ली है, तो फिर तोबा का कोई मतलब नहीं है, तोबा का कोई मतलब नहीं है। अगर तोबा समझ के करके आप समझते हैं कि हम जिंदगी के वारिस हो जाएंगे, तो फिर आपकी तब्दीली तो हुई नहीं। वो पुरानी बदबू जो चीजें थी आपकी ये जिंदगी के अंदर, पुराने गुनाह थे, पुरानी जिंदगी थी, बुड़बुड़ाहट थी, वो सब कुछ तेरे अंदर है और तू कहता है कि मैंने तोबा कर ली है। उस तोबा को जो खुदा से आपने रिसीव की है, जो खुदा के कलाम को आपने सुना है और जो खुदा का कलाम आपको बताता है, जो हुक्म देता है, उन हुक्मों का असर तुझ पे नहीं हुआ, तुझे तोबा तुझे बचा नहीं सकती। छोड़ोगे तो पाओगे। पुरानी इंसानियत छोड़नी पड़ेगी, पुरानी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। जब आप हमें देखते हैं, खुदा के खादमों को देखते हैं, तो यहाँ इतनी आसानी से नहीं आते। मैं अपनी में बात करने लगा हूँ। जब हम शिगिर्द थे तो हम 10 मिनट 15 मिनट लेट कभी आ जाते थे ना, तो चर्च भरा हुआ होता था। 6 मरले का चर्च था, भरा हुआ होता था और हमारा साथ पता क्या कहता था? धूप के अंदर फर्श के ऊपर बाहर कलीसिया के सामने वो कहता था वहां धूप में खड़े हो जाओ, धूप में खड़े हो जाओ, 15 मिनट लेट हो गए, तुम्हें पता नहीं चर्च का वक्त है। तो मेरे सब खड़े हैं, कलीसिया देख रही है। लेकिन अगर वफादारी से वहां झुके रहे हैं, हुक्म को मानते रहे हैं, तो आज खुदा का फजल ये है, खुदा का तरस हमारी जिंदगी पर ये है कि हम मस्बा के ऊपर खड़े होकर खुदा की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। ये है आज की हलीमी फरोतनी। ये सिर्फ मेरी जिंदगी के अंदर गवाही नहीं, हर उस खादम की जिंदगी के अंदर यही गवाही है जो खुदा के पुरपट पर खड़ा है। उन्होंने अपनी हमाकत, अपने गुरूर, अपने घमंड को छोड़ा है। उसने उस्ताद की बात मानी है, वो ताबे हो गया है और खुदा की बरकत उसकी जिंदगी के अंदर आ गई है और खुदा ने उसे ब्लेस कर लिया है। मेरे शिशो, खुदा ने जब इब्राहिम को बुलाया तो फिर इब्राहिम ने सब कुछ छोड़ दिया और नातेदारों को छोड़कर खुदा की पलाट पर वो बियाबानों में उन रस्तों पे चल पड़ा जहां खुदा की पलाट थी और खुदा ने उसे बरकत दी। और जब आगे देखते हैं खुदा के कलाम में, तो इसका बेटा इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक के पास जो कुएं थे ना, खूह थे जो, उनके ऊपर लोगों ने कब्जा कर लिया और कब्जा कर लिया तो इसहाक के पास माल दौलत, नौकर चाकर, सब कुछ ताकत थी, लेकिन उसने उनका मुकाबला नहीं किया। उसने उनका मुकाबला नहीं किया, बल्कि सबने बताया इसने तेरे कुएं पे जो तेरे बाप दादा के थे उन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसने झगड़ा नहीं किया। उसने वो सब कुछ पीछे करके वो खुदा की हजूरी में ठहरा रहा। उसी रात खुदा उससे हम कलाम हो गया। ये है
अपने अंदर उसने हमाकत, गुरूर को नहीं आने दिया, घमंड को नहीं आने दिया, झगड़े को नहीं आने दिया, लेकिन खुदा उससे हम कलाम हो गया। मेरे चीजों, ये बरकत है। जब मत्ती की जिंदगी पर आप गौर करते हैं, मत्ती रसूल की जिंदगी पर, तो मत्ती एक उस वक्त का मीरतरीन शख्स है और मसूल लेने वाली चौकी पर बैठा है, सरकारी मुलाजिम है, अच्छे ओहदे पर है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो चौकी पर बैठकर मसूल ले रहा है लोगों से आने जाने वालों पर। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह वहां पे गया, तो यीशु मसीह ने जब देखा, तो यीशु मसीह को यही प्यार आया होगा। यीशु मसीह उसके पास खड़ा हो गया, खड़ा होके उसे देखा और देखकर कहा, मेरे पीछे हो रहे, मेरे पीछे हो रहे। उसने वहां ही वो माल दौलत, वहां सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और छोड़कर उठकर पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि वो उसके पीछे आके खुदा की हजूरी में आ गया और उसके साथ साथ चलने लगा। और आज वो मुकद्दस है, आज वो मुकद्दस है। वहां कहाँ रहते हैं? जहां खुदा है वहां वो भी हैं, क्योंकि उनके वसीला से पूरी दुनिया के अंदर खुदा का कलाम फैला। छोड़ने का मतलब है, छोड़ोगे तो पाओगे। ये खुदा की बरकतें हैं, ये खुदा की ब्लेसिंग है। अगर छोड़ेंगे नहीं कुछ, तो फिर पा नहीं सकते, फिर पा नहीं सकते। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो फिर छोड़ दो, पुरानी जिंदगी छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो, पुराना गुरूर छोड़ दो, पुरानी इंसानियत छोड़ दो, और खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी के अंदर काम करने दो। अगर मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी के अंदर आजमा लेना। इस मस्बा से वहां तक कितनी पमैश होगी? 40-45 फुट होती है प्लाट की जो पमैश है, 40-45 फुट। मैं तुम दसना चाहना, लोगों की पीढ़ियां बीत गई, पीढ़ियां तो समझते थे, पीढ़ियां बीत गया इन्ना सफर करने च। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर यह देखा है। मैं अपनी बात करने लगा हूं, मेरे जो पीछे खानदान था वो सब जादूगर था, लेकिन अपनी आंखों से मैंने 5वीं पीढ़ी देखी, और 5वीं पीढ़ी में मैं पहला शख्स हूं जो खुदा के कलाम को बयान कर रहा हूं। पुरानी जिंदगी छोड़ दी, सब वही लोग बुलाते थे कि सब उसी जिंदगी के अंदर आ जाओ जहां हम हैं, जहां मेरे बाप दादा थे, मेरे ताए थे, जो जिंदगी बसर करते थे। लेकिन अगर उस जिंदगी को अपनाता तो यहाँ खड़ा होकर खुदा का कलाम नहीं सुना सकता था। हालेलुया। अगर छोड़ना चाहते हैं तो फिर छोड़ दें, क्योंकि रोज रोज की तौबा, रोज रोज के फैसले अच्छे नहीं। फैसला करना एक, हाँ दी जगह हाँ ते ना दी जगह ना। अगर जिंदगी पाना चाहते हो तो फिर खुदा की हजूरी में आ जाओ, छोड़ोगे तो पाओगे। अगर पुरानी जिंदगी अपने साथ रखोगे तो फिर नहीं। यही सवाल शागिर्दों ने किया यीशु मसीह को। उसने कहा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर ए नबी है साथ, हम तेरे पीछे हो लगे हैं, हमें क्या मिलेगा? तो उसने कहा, मेरे साथ बैठकर 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, और क्या चाहिए तुम्हें? अगर खुदा के साथ बैठना चाहते हो, अगर जिंदगी के वारिस बनना चाहते हो, क्योंकि ये जिंदगी जो है ये आज की जिंदगी है। इस जिंदगी की खुदा ने हद मुकर्रर की है। उसने कहा 60 साल या 70 साल, अगर कुव्वत है तो 80। लेकिन फिर भी जिस जिंदगी ने मौत का मजा चखना है, लेकिन वो जिंदगी जो खुदा की जिंदगी है, उसकी जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, वो कभी नहीं मरती, क्योंकि खुदा की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। और वो हमेशा की जिंदगी यहां नहीं मिलेगी जिस जिंदगी का खुदा ने वादा किया है। हमेशा की जिंदगी खुदा में है, और वो खुदा के पास ही जाकर मिलेगी। इस दरवाजे से हम सबको गुजरना पड़ेगा, और इस दरवाजे से गुजरने से पहले हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना पड़ेगा। आज की हलीमी फरोतनी हमारे पास, हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम किसी से भी मिलें तो किसी को पता चलना चाहिए कि यह वाकई ही मसीह है, क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। दरख्त फलों से पहचाना जाता है। जब तुम्हारे अंदर खुदा का कलाम होगा, खुदा की बातें होगी, तो तुम्हारे लफ्जों से पता चलेगा कि तुम बाबरकत हो, तुम बाबरकत हो। लेकिन अगर तुम बाबरकत नहीं
तो उसी टाइम लोग पहचान जाएंगे ये ठंडनाता पीतल है और कुछ भी नहीं। अगर बरकत पाना चाहते हैं, अगर जिंदगी पाना चाहते हैं, तो फिर सब कुछ छोड़ दो, हमाकत छोड़ दो, क्रूर छोड़ दो। जब हम गौर करते हैं इन शागिर्दों की जिंदगी पर, तो जहां खुदा चाहता है हर किसी को इज्जत देना, खुदा भी वहां इज्जत देता है। जब हम लूका की अंजीर पढ़ते हैं 5वें बाब की, तो वहां एक कहानी हमें मिलती है। खुदा यीशु मसीह जैसे उठा है और उठकर बाहर निकला है और खिदमत के लिए निकला है, अभी दिन का आगाज हुआ है, और वो गन्नासरत की झील के किनारे चला गया। तो गन्नासरत की झील के किनारे जब चला गया, तो मेरे जीजो आगे झील है, पीछे भीड़ है, और पीछे लोगों की तादाद ज्यादा हो गई है। मैं चाहता हूं इस कहानी को थोड़ा सा आपके साथ बयान करूं। पीछे भीड़ ज्यादा हो गई है, और भीड़ के साथ खुदा ने देखा कि इनके साथ कलाम कैसे करूं। तो मेरे जीजो खुदा ने जैसे उनकी जिंदगी पर गौर की, तो फिर देखा किनारे पर 2 कश्तियां लगी हैं, 2 कश्तियां लगी हैं। तो खुदावंद ने एक से मिन्नत की, ऐ साहब पतरस की खुदावंद यीशु मसीह ने मिन्नत की, कहा ऐ साहिब, क्योंकि यीशु मसीह भी जानता है कि ये किश्ती मेरी नहीं है, और वहां पतरस भी नहीं जानता कि जो मेरे पास आया है वो देख तो रहा है ये रासबाज है, लेकिन वहां उसे उतना तजर्बा नहीं जो आगे जाके उसने सीखा है। और मेरे जीजो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि पतरस मैं तेरी कश्ती पर बैठ सकता हूँ, और उससे दरखास्त की जरा किनारे से हटा ले चल, जरा किनारे से थोड़ा सा पीछे ले चल। और जिन लोगों को उन बातों की कलाम की जितनी जरूरत थी, यीशु मसीह ने उनके साथ उतना कलाम किया, और जब कर चुका तो फिर उसे कहा अब गहरे में ले चल, अब गहरे में ले चल। पहले पतरस ने उसकी बात मान ली, फिर वेले दिखलोते हैं, रात भर मेहनत की थी लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन फिर भी थके टूटे यीशु मसीह ने जिस तरह उनके दिल की दरखास्त की थी, उसने उसका कहना माना, और जैसे उसका कहना उसने मान लिया, उसने किनारे से थोड़ा पीछे कर ली, और फिर यीशु मसीह ने कहा अब गहरे में ले चल। अगर आप चाहते हैं गहरे में उतरना, तो फिर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप किनारे किनारे पर चलेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। अब गहरे में उतरना पड़ेगा, क्योंकि इतने साल, इतना वक्त हो चुका है आप सबको खुदा के आइन, खुदा के कलाम को सुनते हुए, फिर भी आप किनारे किनारे पर खड़े हैं, तो मछलियां शिकार हाथ नहीं आएगा। अगर कुछ हाथ में लेना चाहते हैं, अगर ब्लेस होना चाहते हैं, तो गहरे में उतरना पड़ेगा। उसने कहा हमने रात भर मेहनत की है लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन तेरे कहने से गहरे में भी चलेंगे और जाल भी डालेंगे तेरे कहने से। तो जब जाल डाला तो मेरे सीसो बहुत बड़ा एक मछलियों का खोल घेर लाए। हालेलुया, भाई जान दीजिए, बहुत बड़ा एक मछलियों का गोल घेर लाए। हालेलुया। और जब गोल घेर लाए तो उन सब ने देखा कि हमने यही पानी है, यही कश्ती है, यही जाल है, लेकिन रात भर मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं आया है, लेकिन ये क्या। तो पतरस ने अपनी जिंदगी पर गौर कर ली है। जैसे उसने अपनी जिंदगी पर गौर की तो उसे अपना आप नजर आया, मैं गुनहगार हूँ, मैं पाप से भरा हुआ हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनाह के अंदर गिरा हुआ हूँ। और वो खुदावंद के हजूर उसी पल, उसी घड़ी घुटनों के बल होके उसके कदमों में गिर गया। उन्हें कहा यार रब्बी मैं गुनहगार हूँ, इकरार कर लिया। उसने इकरार कर लिया, उसने पुरानी जिंदगी छोड़ दी, पुरानी इंसानियत छोड़ दी, और उसने इकरार कर लिया मैं गुनहगार हूँ, रब्बी उस्ताद मेरे पास से चला जाए। तो खुदावंद ने उसी टाइम उसको ब्लेस कर लिया। उसने क्या किया? इकरार किया, जिंदगी पुरानी छोड़ दी। जब हम दिल से इकरार करते हैं, जब हमारी जुबान से अंदर ऐसा लफ्ज निकलता है, एक लफ्ज बाबरकत हो और वो ईमान के साथ बोलना चाहे, तो उसी टाइम मेरा और आपका खुदा बात का जवाब देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसी टाइम उसने जब इकरार किया तो खुदा ने कहा खौफ ना कर, खौफ ना कर, अब से तू आदमगीर बनेगा, बल्कि मछलियां नहीं पकड़ता रहेगा।
अब तो तुम मिशेरा नहीं रहेगा, आदमगीर बन जाएगा। खुदा ने उसे बरकत दे दी और वो एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं कि आओ हमारी मदद करो मेरे अजीजों। लेकिन उन्होंने कहा हम पहले मसरूफ हैं। लेकिन जब उस कश्तियों को वो किनारे पर ले आए हैं तो सबसे बड़ी बात है, जिनको शिकार के लिए वो जरूरतमंद है, रात भर मेहनत की है, रात भर वो थके टूटे हैं और मेरे चीजों वो अपने बीवी बच्चों का फिक्र कर रहे हैं। लेकिन जब वो किनारे पर आए तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। वही कश्तियां, वही शिकार, वही मछलियां, सब कुछ छोड़कर वो खुदा के पीछे हो लिए। उन्होंने कहा अब हमें इन मछलियों की, इन शिकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। अब हम उसके साथ हैं, हम अपनी सारी फिक्रें उस पर डालते हैं। वो सब बातों की फिक्र करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, छोड़ोगे तो पाओगे, अगर पुरानी जिंदगी छोड़ेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं पाएंगे। आज अगर खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले अपनी हमाकत को छोड़ दीजिए, अपने गुरूर को छोड़ दीजिए, अपनी बातों को छोड़ दीजिए और जिंदगी के बारे में सोचिए। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो है इस प्लेटफॉर्म पर, खुदा का कोई भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ बरकतों के चश्मे नहीं समुंदर बहते हैं, समुंदर बहते हैं। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ समुंदर बहते हैं और समुंदर में से अगर एक कौली पानी निकाल लेंगे तो कमी नहीं हो जाएगी। लेकिन यहाँ पानी भरने के लिए बेशक आपके पास कौली है, प्याला है कि आप देग लेके आए, ये आपको पता है, बर्तन आपने लेके आना है। बरकतें यहाँ है, बरकतों का यहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप बरकत लेना चाहते हैं, अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले वफादार हो जाए, ताबे हो जाए, अपने घमंड को, अपने गुरूर को पीछे कर दे, आज की हलीमी फरोतनी के साथ झुक जाए। और खुदा को पता है, किसी इंसान को नहीं पता उसने कब, कहां और कैसे आपको इस्तेमाल करना है। हालेलुया, कब, कहां और कैसे आपको इस्तेमाल करना है यह खुदा जानता है, किसी इंसान के पास की बात नहीं। अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो पुरानी जिंदगी छोड़ दीजिए, पुरानी जिंदगी से प्लीज को कह दीजिए आज मेरी जिंदगी में तेरा कोई काम नहीं है। ए कमांड, मेरी जिंदगी में तेरा कोई काम नहीं है। ए गुरूर, मेरी जिंदगी में तेरा कोई काम नहीं है। ए झूठ, मेरी जिंदगी में तेरा कोई काम नहीं है। और फिर खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए और फिर खुदा की ब्लेसिंग देखिए। फिर खुदा कहता है कि तुम आते हुए भी मुबारक हो गए और बाहर घर से जाते हुए भी मुबारक हो गए। हालेलुया। तो आज का मजमून है, छोड़ोगे तो पाओगे। अगर कुछ छोड़ेंगे तो आप जिंदगी पाएंगे और कसरत की पाएंगे और हमेशा की पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे।